500 of a hydrocarbon, 500 ml of a hydrocarbon gas is burnt in excess of oxygen this yields 2500 ml of carbon dioxide and 30 liters of water. Water in the form of vapors. All the volumes being measured, at the same temperature and pressure. Yes. What is the molecular formula of hydrocarbon gas? What is the formula of hydrocarbon gas? Tell me. Hydrocarbon gas. Tell me. You were missing in the last class, right? Were you present online? No. Why you missed the class then? Please watch the recordings. Okay, and if you have any doubt anywhere, let me know. Okay, wait. Let me tell you the general reaction for the combustion of a hydrocarbon. Suppose if you have CXHY, any hydrocarbon, reacted with X plus Y upon 4 moles of oxygen to get X moles of carbon dioxide. C5H12. C5H12, okay. So I've got one answer, C5H12. Kindly mute yourself. Ronit, kindly mute yourself. I have written your answer already. Mute yourself. अपना माइक बंद करो रोनित. आपकी आवाज नहीं आ रही. सर आप म्यूट कर दो. Plus y by 2 of what? Now can you do it? y by 4 क्या होगा? ये बैलेंसिंग की कॉन्सेप्ट है. y by 4 क्यों होगा? What is this? This is balancing. This is a general reaction. So basically you need to tell me the formula of CXHY. What is X and Y? इसके साथ आप कोई भी बैलेंस कर सकते हो, कोई भी हाइड्रोकार्बन. पेंटेन है, उसका कंबशन भी कर लोगे तो भी आप निकाल दोगे. वैसे तो कोई जरूरत नहीं है इसकी, बट क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए यू रिक्वायर दिस जनरल रिएक्शन. तो देखो, हाँ हाँ ओके.
C5H12 ये आ गया चलो देखो can I say that one volume of hydrocarbon if I have it requires x plus y upon 4 of oxygen yes or no yes volume लिख सकते हैं and one volume of CXHY produces x volume of carbon dioxide and one volume of CXHY produces y upon 2 volume of water vapors. Now, what is the volume of CXHY? 500. So if one volume, sorry, इसकी तो जरूरत नहीं है चलो पर ठीक है पता चल गया. One volume of CXHY producing x volume of CO2. So 500 volume will produce 500 x of CO2. Yes or no? Yes. Yes. And this is given 2500. This is the value of this is given. So 500x is equal to 2500. X comes out to be 5. So x to ठीक है C5. Let us see what H. Now 500 volume. If one volume is producing y by 2, 500 volume will produce 500 y by 2. Yes or no? Volume. And इसकी value भी आपको given है. It should be 3 liters. 30 नहीं होना चाहिए, 3 होना चाहिए. 3 होना चाहिए ना क्योंकि तभी ये 3000 होगा, इतना ही फर्क होता है. 3000 ml होगा क्योंकि ये ml में तो वो भी आपको ml में लेना पड़ेगा. तो this is equal to 3000 ml. तो these two get cancelled by these two. 60 तो कहाँ आ रहा है? तो इससे आ रहा है 12 तो 30,000 से कहाँ 12 आ रहा है? तो देखो ये हो जाएगा 60/5 which is 12. हाँ उससे 25 आ रहा था तो वो शायद मैंने y/2 ले लिया था y जो यहाँ पे आ रहा था एग्जैक्टली वो वही ले लिया. हाँ तो ये आ गया. वो 3000 उसको 3 लीटर का तो इतना फर्क नहीं आया ना कि 30,000 ml and 25 3 liters. चल आ गया. घूम फिर के मैं बोल रहा हूँ सारे क्वेश्चंस उसी मेथड पर है, सारे वैसे ही हैं. चाहे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोकार्बन गैस का निकालना हो या फिर न्यूट्रलाइजेशन वाले क्वेश्चन हो, हर जगह एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए. कौन सा रिपीट कर दूं? आपने तो मुझे आंसर बताया. आंसर कैसे बताया आपने मुझे? आप ही ने बताया. सेकंड स्टेप नहीं आया समझ. पर आपने C5H12 कहां से बता दिया फिर? सेकेंड स्टेप तो मैं बता दूंगा. सेकेंड स्टेप है कि 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोकार्बन गैस प्रोड्यूसिंग y/2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स. ठीक है. सो 500 ml वॉल्यूम विल प्रोड्यूस 500 into y/2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 500 y/2 की जो कि 3000 ml है. बिकॉज़ दिस इज 3 liters so I have to change it into ml which is 3000 ml. Clear? यस सर. ओके. अब अपना माइक म्यूट कर लीजिए. गुड. चलो ओके. एक और क्वेश्चन. And out. If the percentage of water of crystallization, if the percentage of water of crystallization in MgSO4 dot XH2O is 13%, find the value of X. Find the value of X. Yeah, please take this. Okay.
have you understood the electronic configuration in the last class? How to write it? Yes. Till atomic number 30. As of now, till atomic number 30. सर उसमें जो unacademy प्रिंसिपल था तो वो बता दें. चलिए. Shall we discuss? Yes, sir. Okay, देखो. When it is given 13%, it means it is the mass percent. It is the mass percent. So mass percent, this is a question from percentage composition. So मैं हर एक topic का एक question जैसे मैंने बोला था तो ये percentage composition है. तो mass percent of water is mass of water, which is what? 18 18. into the number, which is x. Total mass, na? Divided by the total mass of MgSO4.xH2O, which is 18x obviously for the water, plus magnesium is 24, sulfur is 32, oxygen is 16. 4 into 16 into 100. Into 100. And this mass percentage is given to be 13. Now please do not write 13%. The percentage is given to be 13. So only write 13. If you write it 13 upon 100, then do not write 100 over there. Okay. So this is 13. And just solve for x. And whatever it is. Just solve for x and tell me what it is. Is it clear? This is from the basic concepts in the first chapter. Percentage composition. What it is? It should come out to be 1. MgSO4.H2. Is it 1? So 0.9. Almost 1. तो 0.9 तो हो ही नहीं सकता, almost 1. ठीक है. ये ऑप्शन ऐसे थे 1, 2, 3, 4 करके. So it is 1. Alright. चलिए. So last percentage for all questions. Which one? इसी topic for all questions. इस टॉपिक में और क्वेश्चंस आप खुद से प्रैक्टिस करो और अगर डाउट आते हैं तो मुझे बताओ. आई थिंक आपको वो बुकलेट भी मिली होगी. उससे भी आप यू कैन ट्राई. ठीक है. यू कैन आस्क मी इफ यू हैव एनी डाउट्स. ऑलराइट. चलिए. बिकॉज़ आपने बोला कि टॉपिक करा दिया मैंने. तो ठीक. आप एक ही करना. चलो मैं बीच में कराता रहूँगा. ठीक है. डेली 5 क्वेश्चंस. ठीक है. 5 questions from basic concepts, 5 questions from structure of an atom. Fair enough? Yes. ठीक है. Then you don't have to worry about topic wise. ठीक है. जब मुझे लगेगा टॉपिक खत्म हो गया तो मैं आपको बता दूँगा. ठीक है. चलो. So now I'm start. Since you have understood the electronic configuration well, Yes, sir. periodic classification I am not doing as of now. I will do it before S block. Because ठीक है, before S block. I'm starting with chemical bonding. And please, this is the most important chapter from the chemistry. Whether any exam, not only NEET, whether it is JEE exam or the state exam or the UPSC exam, where you opt chemistry as an optional paper, there also chemical bonding is the chapter with highest weightage. It is with the highest weightage in all the exams.
So chemical bonding. सर एक बार वो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी बताइए. I will, don't worry. जब मैं रिवाइज कराऊंगा ना चीजों को तब करा. Sure. Okay, so first of all, what is a bond? Anyone? What is a bond? Chemical bonding, so obviously chemical bond. What is a bond? सर लिंकेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स और atoms. Sharing of electrons. What's a bond? Like, if you are telling it to a lame. Attractive force. Attractive force, kind of. Okay, who's this? Shireen. Yes, sir. Okay, attractive force. I'm considering that. Anything else? Which holds the atoms together. Atoms is fine, but that is you are talking in terms of chemistry. But I'm just asking you, what is a bond? That bond can be between a father or a mother, a father and a son, a father or a daughter, whatever. So what is that? Interaction. Okay. The connection. The connection, attachment, attachment to nahi hai. Okay. So a bond is basically the force of attraction. Force of attraction. और bond का मतलब ही ये होता है, if bond is getting formed, तो वो तभी बन रहा है क्योंकि हम attract हो रहे हैं किसी के, जैसे mother and son का अगर bond है, वो इसलिए बना है क्योंकि वो stable है. अगर हम दोनों का bond नहीं बन रहा क्योंकि मुझे दिख रहा है कि हम दोनों stable ही नहीं रहेंगे, है ना? मतलब stability दो लोगों के बीच में या दो atom के बीच में, दो molecule बीच में नहीं है, तो bond बनेगा ही नहीं वहाँ पे. बॉन्ड इसीलिए बन रहा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये बॉन्ड बन गया तो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी. ठीक है, सो दिस इज योर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स. नाउ if I'm saying that force of any problem, force of attraction, so now I'm coming to the chemistry subject. So I'm considering this as an atom. ठीक है, nucleus, another atom, atom A, atom. You know that every charge is having some sort of field. Yes, sir. ठीक है, और वो फील्ड ही है जिसमें मैं बोलता हूँ कि मेरा कुछ ऑरा है, जो ऑरा बोलते हैं इंसान का, कि उस ऑरा से आप इन्फ्लुएंस हुए या नहीं हुए. वो तब क्योंकि अगर आप मेरे ऑरा से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ मेरी फील्ड उतनी है कि मैंने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया. सो एवरी चार्ज इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ फील्ड. So अगर मैं बोलूं इस न्यूक्लियस की कोई अपनी फील्ड होगी, obviously पॉजिटिव चार्ज है, तो आई एम कंसीडरिंग दिस टू बी माय फील्ड. फील्ड का मतलब है कि अगर इस फील्ड के अंदर कुछ भी चीज आती है, या तो वो रिपेल होगी या वो अट्रैक्ट होगी इस फील्ड के अंदर. अगर नहीं इस फील्ड से बाहर है तो कोई चेंज नहीं होगा. जैसे मैं बोलता हूँ आइसोलेटेड एटम, आइसोलेटेड मतलब उसके फील्ड में कोई है ही नहीं, वो अकेला है. ठीक है, अच्छा ऐसे इस वाले न्यूक्लियस की कुछ अपनी फील्ड होगी. Yes? Yes, sir. Suppose इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है. Can I say that positive field of these two atoms, they will repel each other? Yes, sir. Yes? जिसमें आप बोल सकते हो nucleus and nucleus repel each other. Okay, इसको मैं दूसरे kind से दिखा. So basically they are repelling. So there are forces of repulsion. Similarly, this electron of one repel this electron of another. Forces of repulsion. And same goes here. So I have forces of repulsions. But having said that, I also have forces of attractions between the positive field of this atom and the electron of the another. Similarly, the electron of this and the positive field of this. ठीक है, so this and this and this. ठीक है, so these are your forces of attractions. ठीक है, so there is an interplay of forces of attractions and forces of repulsions. Okay, so can I say that I have three cases? What are those three cases? These forces of repulsions can be greater than the forces of attractions. Yes or no? Yes, sir. The forces of attractions are greater than the forces of repulsion. And forces of attractions and forces of repulsions, they balance each other. Okay, I have three cases because of these forces. Okay. All right. Let me show it graphically.
Suppose this is my atom A. I'm considering it to be stationary. ये move नहीं कर रहा. ये है मेरा atom B. अभी इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, वो दूर है, ठीक है? This is the distance दोनों के बीच में, and this is the energy. Okay. अब मैं क्या कह रहा हूँ कि B, this is atom B, this is atom A. Now B is coming towards the nucleus. It is approaching B. Now, if I'm saying that it is approaching it is approaching A and it is moving towards A, can I say it is only approaching towards A because it is experiencing the force of attraction? Yes? Okay. And forces of attraction means whenever there are attractions, that's stability, and stability means the energy of the system is going down. So it is coming closer to the nucleus, to atom A. Coming closer, energy is getting down to a point. So अगर मैं आप क्वेश्चन दे दूं आपको और मैं कोई भी यहाँ पे एक पॉइंट दे दूं, मैं पूछूं इस पॉइंट पर कौन सी फोर्सेस मतलब अपना रोल प्ले करी, तो आप बोलोगे इस पूरे कर्व पर टिल हियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर ग्रेटर देन द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. अट्रैक्शन से तभी तो वो मूव कर रहा है इसके पास, ठीक है, टू अ पॉइंट. इसका मतलब बी एटम अब यहाँ पर आएगा, ठीक है? ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बैलेंस कर रहे हैं फोर्सेस ऑफ रिपल्शन. उसके बाद इफ बी इज कमिंग क्लोजर टू ए, ठीक है, इवन मोर क्लोजर टू ए, तो अब क्या होगा, इंस्टेड ऑफ अट्रैक्शंस द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन कम इनटू पिक्चर, ठीक है? और ये पूरा आप अपने नॉर्मल लाइफ से भी देख सकते हो. हम कहते हैं कि किसी चीज को, वो जो डायलॉग्स भी है बहुत सारे मूवीज के, वो सही है, अगर ये इसको इतना इसके इतने पास आएगा तो वहां पे रिपल्शंस होने शुरू हो जाएंगे बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ वन एंड द न्यूक्लियस ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन्स. तो उसके बाद क्या होगा, रिपल्शंस आ जाएंगे तो एनर्जी विल इंक्रीज. ठीक है, पर ये मैंने ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि फिर तो कितना भी करीब ले आओ एनर्जी तो इंक्रीज ही होगी, ठीक है? अच्छा, इस पूरे लाइन पे फोर्सेस ऑफ रिपल्शंस ग्रेटर है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस. मुझे सिर्फ इस पॉइंट से काम है जहां पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्सेस ऑफ रिपल्शन बैलेंस हो गए. यही वो पॉइंट है व्हेन आई एम सेइंग दैट AB bond has been formed. When AB bond has been formed. If AB bond has been formed, what is this? Can I say this is interatomic distance, which you call often called bond length? Bond length. Or you can call it interatomic distance. अगर ये वाला चैप्टर आपको समझ आ गया तो आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझ आ जाएगी, आपको ऑर्गेनिक के सारे मॉलिक्यूल्स समझ आ जाएंगे अगर ये चैप्टर समझ आ गया. क्योंकि एमओटी प्लेज, अच्छा एमओटी तो आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी, कोऑर्डिनेशन में एलएफटी है, वो आपके सिलेबस में है, ठीक है? बट कोई नहीं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल समझ आ जाएंगे एमओटी से, ठीक है? बॉन्ड है. और व्हाट इज दिस, ये जो एनर्जी की वैल्यू है इस पॉइंट पर, दैट मींस दिस मच एनर्जी. व्हाट इज दिस एनर्जी? इसका मतलब जब ये बॉन्ड बना तो दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड. जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है ना. सो कैन आई से दिस इज माय बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी. दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड. अच्छा, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखूं मैं तो इसका मैग्नीट्यूड, आई कैन आल्सो कॉल दिस एनर्जी टू बी द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बिकॉज़ जितनी एनर्जी रिलीज हुई बॉन्ड बनने में, इफ आई वांट टू ब्रेक दिस AB bond, then I need to provide the same amount of energy. So basically this is, I can relate it with bond dissociation energy. बाकी इनकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है वो थर्मोडायनामिक्स में हम देखेंगे, ठीक है? क्लियर? अच्छा, हैविंग सेड दैट, बॉन्ड तो बन गया, बॉन्ड तो बन गया. ओके, अब बॉन्ड तो बन गया, लेकिन जो चीजें, मतलब जो मॉलिक्यूल बना, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि AB3 मॉलिक्यूल बन गया, तो वो जो 3 एटम्स है वो किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब उनका ओरिएंटेशन क्या है स्पेस में, बेसिकली द स्ट्रक्चर, ठीक है? तो उन्हीं स्ट्रक्चर्स को पढ़ने के लिए डिफरेंट थ्योरीज केम इनटू पिक्चर. एंड द फर्स्ट वन
which you have an idea already, is the Lewis concept. Lewis concept. You know, Lewis said that every atom tries to keep 8 electrons in its valence shell. That means it tries to complete its octet. Why? Because by doing so, it attains the stable noble gas configuration. Yes or no? So every atom, when I say every atom, that means central atom. Every atom tries to keep 8 electrons in its valence shell. Okay. I can write it octet. Okay. To achieve the stable noble gas configuration. Stable noble gas configuration. Okay. Except hydrogen, which keeps 2 electron duplet in its valence shell. ठीक है, चलिए. Now, तो ये Lewis concept. तो अगर Lewis concept समझ आ गया तो let us discuss the Lewis structures. देखो. Let's, for example, if I say, can you draw the structure of nitrate ion, NO3 negative? Please draw it. Nitrate, NO3 negative. No, I mean in the structure, not the electron dot. Okay, if you want. Basically, it means the same. After electron dot, you will get the bond line. ये चलो पहले समझा देता हूँ, फिर आप ज़्यादा अच्छे से बना लो. ठीक है, अभी प्रॉब्लम आई. ठीक है, चलो देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर के लिए बोलूं, और ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है. देखो, द फर्स्ट स्टेप, पहले तो यही पता होना चाहिए कि सेंट्रल एटम क्या होता है. देखो, सेंट्रल एटम यूजुअली लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, less in number, and एक ही बात याद रखना, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन cannot be the central atom, क्योंकि वो एक ही बॉन्ड बना दे, तो they cannot be the central atom. जैसे for example PCl5, what is the central atom? Phosphorus, usually less electronegative, less in number, usually. ठीक है, अभी आपके सिलेबस में सारे less electronegative वाले हैं. That is why I have written usually, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जरूरी हमेशा ही हो. Less in number, ठीक है, तो ये हो गया आपका central atom. अगर मैं बोलूँ SF6, central atom, IF7, I8 being the central atom. All right, चलो, अब क्या करना है? You need to find 4 numbers. You need to find 4 numbers. N1, N2, N3, N2. कोई भी मॉलिक्यूल हो, सबसे पहले ये काम करना है. N1 is total number of valence electrons. Total number of valence electrons. इसको आप valence electron count बोलते हैं. ठीक है. N2 is electrons required for octet. I'm not writing electrons required to complete the octet. It is the electrons required for octet. Required for octet. N3 is basically N2 minus N1, which is total number of. और अभी देखना इसके बाद कैसे आप सारे फॉर्मूले कितने अच्छे से कर लोगे. टोटल नंबर ऑफ shared electrons. Total number of shared electrons. And N4 is basically total is this, shared is this. So this is N1 minus N3. This is basically total number of unshared electrons. जिसे आप लोड पेयर बोलते हैं. Total number of unshared electrons. What do you call load?
Let us start with a simple molecule, that is carbon monoxide. What is the valence electron count? N1. Tell me. Quickly. What is the valence electron for carbon? 4. For oxygen? 6, which is 10. What is N2? Acha. Carbon also requires 8 electrons, oxygen also requires 8 electrons, so 8 plus 8 is 16. That is why I have written required for octet, not for the completion of octet. Required for octet. So 8 plus 8, 16. N3 is this minus this, 6, and N4 is this minus this. हमें चीजें पता चल गई, अब हम ड्रॉ करते हैं। देखो, क्योंकि दो ये डायटोमिक है, तो कैसे भी लिख लो, कार्बन को यहाँ लिख लेते हैं, ऑक्सीजन को यहाँ लिख लेते हैं। Total number of shared electrons are 6. One electron comprises of 2 electrons. So 6 means 3 bonds. 6 bonds. So अब तो दो ही है तो कोई मतलब ही नहीं, आप ऐसे बस तीनों बॉन्ड बना दो। उसके बाद उसे मत देखो अभी। First job is to draw the bonds. ठीक है? Now the second task is to complete the octet of each atom. Carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. It requires how many? 2 more. Oxygen requires 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many? 2. 2 more. And see, our 4 unshared electrons have also been accommodated. ठीक है? ठीक है? Okay. अच्छा. So, how many electrons are there in the valence shell of carbon? No, in the valence shell. 4. How many electrons I have shown here? No. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1 is the formal charge on carbon. Minus 1 is the formal charge on carbon. How many electrons should be there? I mean, are there in the valence shell of oxygen? 6. How many I have shown here? 5. You know what it means? It means that the 2 electrons of the last bond belongs to oxygen, and it has shared it with carbon so that the octet is complete of both the atoms. Getting my point? The structure is fine. There are 3 bonds. If someone asks you how many bonds are there between carbon and oxygen and carbon monoxide, you will say 3 bonds. You will say it is 3 bonds. But there is an anomaly, right? Because I have shown 5 bonds, but I know that there are 4 valence electrons. So what it means? It means that कोई भी bond ले लो, that the last bond, the 2 electrons of this bond belongs to oxygen, but it has shared it with carbon via coordinates. Via coordinates. मतलब -1 से +1. तो -1 से +1 का मतलब कि ऑक्सीजन अब देखो 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया ना? लेकिन अब आप कहोगे सर तो सिर्फ कोऑर्डिनेट दिखाना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट में तो बॉन्ड है। देखो कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज योर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ओनली because this is also sharing, though it is not mutual sharing, but it is a sharing. So this is also a special kind of covalent bond. देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 CR रुपीस है, अब वो 1 CR आपने मुझे दिए या मेरी लॉटरी लगे तब मुझे मिले, मेरे पास तो 1 CR है ना, तो once the bond has been formed, बॉन्ड बन चुका। कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट केवल बनने का तरीका है, ठीक है, लेकिन अगर एक बार बॉन्ड बन गया तो कोई नहीं आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते whether it is formed by a covalent or coordinate, it is just the way of forming a bond. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप तो यही बोलोगे कि 3 bonds है between carbon and oxygen, ठीक है, but yes the last bond, केमिस्ट्री तो पढ़नी है, the last bond is basically a coordinate bond where the 2 electrons of this bond belongs to oxygen and it donates to share it with carbon so that the octet is complete of both the atoms, ठीक है। तो फॉर्मल चार्ज का कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना, फॉर्मूला है निकालने के लिए, फॉर्मल चार्ज का कोई याद नहीं रखना, बस ऐसे ही करना। अब आपको फॉर्मूले मैं कोई भी फॉर्मूला आप देख लेना, मैं याद ही नहीं कर पाऊंगा फिजिकल में 1-2 को छोड़ के, बस और कोई, ठीक है, चलो ठीक है,
Let us move to the next molecule. अब आप करके मुझे बताओ. Let us say carbon नहीं, हाँ, कार्बोनेट चलिए. चलो ये बार एक बार मैं करा देता हूँ क्योंकि आयनिक फॉर्म है. So N1 total valence electron count for carbon 4 for oxygen 6. so 6 into 3 is 18 and you will add these two electrons. इसका मतलब है कि इसने ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं तो उसको भी आप ऐड करोगे तो वो कितने हो गए टोटल 24. N2 is देखो कार्बन को भी 8 चाहिए ऑक्सीजन को भी 8 चाहिए so 8 into 4 which is 32. N3 is माइनस कर दो कितना हो गया 8 और N4 is 24 minus 8 which is आप देखो कैसे इधर देखो आप सेंट्रल एटम क्या है कार्बन. कार्बन को यहाँ तो 3 ऑक्सीजन है उसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 ठीक है. अच्छा अब अगर सर आपने ऐसे क्यों लिखा वो मुझे क्योंकि पता है मैंने बीएससी थ्योरी पढ़ी हुई है अभी आपने नहीं पढ़ी तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं. आप मुझे पता है आप सोचोगे पता है ऐसे लिखूंगा बट क्योंकि मुझे तो बीएससी थ्योरी पढ़ा आपको भी अब थोड़े एक शायद इसी क्लास में पता लग जाएगा लास्ट तक ऐसे ही लिखूंगा आप भी ऐसे ही लिखोगे देख लेना. ठीक है चलो कितने बॉन्ड्स बनाने हैं 8. नहीं 8 तो इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्ड कितने बनाने हैं 4 सिमेट्रिकल बॉन्ड बनाने हैं पहले तो जब तक सिमेट्री मेंटेन कर सकते हो तब तक मेंटेन करो 1 2 3 बट अब तो कोई चॉइस ही नहीं है. ठीक है इसको नहीं देखना अभी मैंने क्या बोला था ऑक्टेट कंप्लीट फॉर दिस ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8 फॉर दिस कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 completed for this 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है और आप देख लो 6 6 12 13 14 15 16 वो 16 एकोमोडेट हो गए. ठीक है अच्छा फॉर्मल चार्जेस अब है फॉर्मल चार्जेस इसके लिए तो 0 ही है 6 ही दिखाने थे 6 ही दिखा रखे हैं तो 6 माइनस इसके लिए भी ठीक है 4 ही होने चाहिए 4 इसके लिए 6 होने चाहिए बस 7 दिखा दिए मैंने तो -1 और इसके लिए -1 ये -2 समझ आ गया कैसे आया आपको इसकी वजह से आया तो इसका अगर स्ट्रक्चर बोलोगे तो आप ऐसे ड्रॉ कर देना. सर वहाँ पे 32 कैसे आया कार्बन को कितने मतलब ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8. तो 8 इसके लिए और 3 ऑक्सीजन है तो 4 हो गए 4 into 8 ठीक है. अच्छा हाइड्रोजन होता जैसे मैं अभी कराऊंगा उसके लिए 2 उसके लिए 2 ऐड करना उसके लिए 8 मत कर देना आ गया. तो मैं इसको अब आप मुझे नाइट्रेट का बताओगे जो मैं पूछ रहा था चलो जल्दी से नाइट्रेट NO3 माइनस और ये बहुत अच्छा है अगर आपको किसी को टेस्ट ही करना है ना केमिस्ट्री में अगर किसी को टेस्ट करना है तो जाके उससे ये स्ट्रक्चर पूछो नाइट्रेट का स्ट्रक्चर बताओ और अगर उसे बना भी दिया तो भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है कि कैसे बनाया. Like when I was interviewed here, I was asked this question. Now when I interview people, but now I have changed, right? मुझे लगा कि शायद उनके फ्रेंड्स ही ना आ जाए मतलब डबल बॉन्ड राइट चलो just giving you 30 seconds more just find out the 4 numbers first. Yes Shireen, getting it? Gayatri, Bhavika, Anjana. Alright, देखें चलो N1 quickly बिना N1 निकाले कैसे आपने स्ट्रक्चर बना लिया देखो N for nitrogen 5 this is 6 and plus 1 what it is 24 electrons. 24 okay N2 तो वही आएगा 32 क्योंकि इसमें भी 4 ही है इस बार भी
N3 ये तो सारा वैसे ही आ गया, एक 34 16 ये तो वही हो गया कार्बोनेट वाले। चलो N सेक्टर एटम है O 8 तो 1 2 3 4 कोई प्रॉब्लम? सेकंड टास्क उसे नहीं देखना अभी, ऑक्टेट कंप्लीशन 1 2 3 4 ऑक्टेट कंप्लीट 1 1 2 3 4 5 6 7 8 नाइट्रोजन का कंप्लीट है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे करके हमारे 16 एकोमोडेट। फॉर्मल चार्ज अभी निकाला था, बार -1 0 for nitrogen how many electrons are there? And positive on nitrogen. हाँ, so this is 5 होने चाहिए और मैंने दिखाया 4 है, तो this is +1। इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है कि कोई भी बॉन्ड ले सकते हो, इसको ले लो, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कौन दे रहा है? नाइट्रोजन। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड कैसा है? सॉरी, ये वाला बॉन्ड कैसा है? तो प्लस माइनस तो ये तो कैंसिल हो गए, एक प्लस माइनस एक ही चार्ज है ना नाइट्रेट पे, वो इसकी वजह से ये तो कैंसिल हो गए, इसको तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। सर इस चार्ज वाला एक बार फिर से बता। अच्छा चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं नाम सोचूंगी कैसे लिख दिया। ये चार्ज देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अभी मैंने कितने दिखाए हुए? 1 2 3 4। अरे इस बॉन्ड में इसका भी तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्रोजन के कितने दिखाए मैंने? 1 2 3 4 5 होने चाहिए, 4 दिखाए तो +1 फॉर्मल चार्ज। ऑक्सीजन के पास कितने होने चाहिए? 6 दिखाए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 तो 6 - 7 -1। इसका मतलब पता है क्या, कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के नहीं है, नाइट्रोजन के है, वो लेकिन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। अब आपको पता है ये -1 इस वाले ऑक्सीजन, क्योंकि वो +1 ये कैसे पता चलेगा कि 4 ही बॉन्ड्स बना? कहां पर? मतलब इससे क्योंकि N3 8 है ना। ये अच्छा ठीक है, क्योंकि एक बॉन्ड दो तो हाँ मतलब सिमेट्रिकल आपको करना है। जब तक जैसे मैं इसके बाद एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल कराऊंगा, उसमें मैं आपको देखना चाहता हूँ कैसे करोगे। चलो अब आगे, चलो ओजोन आप कर लो, अगर बहुत जल्दी कर लो तो मैं दे दूं। ओजोन का जल्दी से स्ट्रक्चर बताओ क्विकली। ये देखो, ये तो स्ट्रक्चर पहले बन गए विदाउट N1 N2, गलत हो जाएगा सारा, इसीलिए तो N1 N2 N3 N4 और कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है कोई। देखो N1 बताओ जल्दी से, 18 N2 24 N3 6 N4 12। देखो O 6 तो मतलब 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 oh sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 2 3 4 5 6 so 6 7 9 11 12 have been accommodated. Now फॉर्मल चार्जेस, इसके लिए तो 0 आएगा, इसके लिए -1, इसके लिए +1, इसका मतलब ये वाला बहुत कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, सिंपल बस। ठीक है, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया। क्लियर चल, अब आप बताओ मुझे एजाइड। This is not nitride. This is azide. Nitride तो ऐसा होता है ना, ये N3 नेगेटिव है, azide। चल, azide बताओ मुझे। N2 क्या था? N2 था जैसे ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हाँ। ऑक्टेट के लिए, हाँ। तो 3 ऑक्सीजन है तो 8, ऐसे यहाँ पे भी वैसे 24 ही आएगा। हाँ, तो चलो N1 साथ साथ निकालते रहे। N1 बताओ। 15 15 24 9 15 कैसे आ गया? 16 आया। 16 ये कौन ऐड करेगा? अच्छा सॉरी हाँ 16। चलो N2
24 24 and 3 8 8 and 4 8 चलो and 3 देखो इधर देखो अभी मैं इनको ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ी देर बाद आप भी पहचान लोगे मैंने ऐसे क्यों लिखा है। चलो बस बात वो नहीं है बात तो मुझे बॉन्ड्स पता करने हैं इनके बीच में। चलो बताओ लीनियर शेप में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको हाँ तो कैसे टू बॉन्ड्स ओके तो एक हाँ ठीक है टू बॉन्ड्स एब्सोल्युटली करेक्ट ठीक है ये तो ठीक हो गया अब ऑक्टेट कंप्लीशन देखते हैं इसके लिए 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड फॉर दिस वन इसका तो कंप्लीट है अब फॉर्मल चार्ज होना कितने चाहिए यहाँ पर है कितने 4 प्लस 1 होना कितना चाहिए 5 है कितने 1 2 3 4 5 6 -1 इसका मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ठीक है एक बॉन्ड यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और वो जो माइनस साइन है वो उस वाले नाइट्रोजन पे है इसलिए क्योंकि प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए ना वो तो शेयर हो गए प्लस माइनस का मतलब शेयर हो गया तो अब ये इसके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसलिए क्योंकि इस वाले बॉन्ड के या तो आप इधर बनाओ उधर बनाओ प्लस 1 है ना तो मतलब इस एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले नाइट्रोजन के लेकिन वो उसके साथ शेयर कर रहा है ताकि ऑक्टेट और फिर वहाँ -1 वहां तो वहां का -1 तो वो -1 है ही एक वहाँ एक ही न्यूट्रलाइज हो गया ना +1 -1 हाँ बस एक ही न्यूट्रलाइज हो गया तो So after neutralization, the number of atoms they are getting have to write that. सॉरी यस after the neutralization process, Basically, it the is number of not a atoms they are getting we have to write that. basically it is not a neutralization चार्जेस हाँ न्यूट्रलाइजेशन तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बेसिकली तो ये तो शेयरिंग ही है शेयर हो गया ना इलेक्ट्रॉन हाँ तो आप क्या बोल रहे थे आफ्टर दिस बैलेंसिंग वेदर यू आर सपोज्ड टू राइट इट और नॉट नो यू डोंट हैव टू Yeah. नो यू डोंट हैव टू दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दिस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर सर N4 में क्या था? नहीं 8 16 minus 8 ठीक है n1 माइनस देखो ना टोटल ये शेयर्ड ये तो अनशेयर्ड क्या हो गया टोटल में से शेयर्ड माइनस कर दो है क्या अब यहाँ पे एक्सेप्शंस भी है ठीक है तो जितने मैं करा रहा हूँ अभी उतनों पे ध्यान दो एक्सेप्शन से तभी तो नई नई थ्योरीज आई थी ठीक है चलो अब हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस पहले रेजोनेंस करते हैं फिर लिमिटेशंस का रेजोनेंस अच्छा यू नो कि हम बेंजीन को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं लेकिन ये रेजोनेंस में है क्योंकि साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता रहता है ना और मैं कहता हूँ जो रियल स्ट्रक्चर है वो इन दोनों का हाइब्रिड है इसका मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में घूम रहा है ठीक है ना और फिर पूरे रिंग में घूम रहा है तभी तो मैं ऐसे ड्रॉ करते हैं इसको ये क्या है रेजोनेंस रेजोनेंस अच्छा इसकी जरूरत क्यों पड़ी वैसे तो ये स्ट्रक्चर क्यों नहीं करा ये स्ट्रक्चर की क्या जरूरत है क्योंकि कुछ ऐसा हुआ होगा कि कुछ प्रॉपर्टीज है जो ये वाला मॉलिक्यूल सेटिस्फाई कर रहा होगा कुछ प्रॉपर्टीज है जो ये वाला सेटिस्फाई कर रहा होगा तो फिर दोनों का एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमने ले लिया फाइनल स्ट्रक्चर में जिससे में रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ कोई प्रॉब्लम जैसे कि फॉर एग्जांपल क्योंकि हमने कार्बोनेट कर लिया है तो मैं कार्बोनेट का ही एग्जांपल ले रहा हूं ये मेरा कार्बोनेट है अरे यही स्ट्रक्चर है अगर यही स्ट्रक्चर होता तो मैं कहता देखो तो मैं कहता जो बॉन्ड लेंथ है सपोज ये 1 है ये 2 है ये 3 है तो मैं कहता बॉन्ड लेंथ जो है वो C और O1 की शॉर्ट होनी चाहिए थी देन C और O2 की व्हिच इज इक्विवेलेंट टू C और O3 यस और नो क्योंकि वो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड तो बॉन्ड लेंथ वो कम नहीं होनी चाहिए थी यस और नो यस ऐसा होना चाहिए था बट आपको पता है कि all CO bond lengths are same all CO bond lengths are same चलो ठीक है ये तो हो गया बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट
बॉन्ड ऑर्डर में भी देख लो, अगर ये स्ट्रक्चर होता तो मैं बोलता बॉन्ड ऑर्डर है मेरा क्योंकि एक डबल बॉन्ड आ गया, या 2 बार बोल दो। अभी बॉन्ड ऑर्डर मत करो, पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता दूं तब मैं बॉन्ड ऑर्डर बताऊंगा, ठीक है? आगे अब क्या है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इसका रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? देखो एक स्ट्रक्चर इसका ऐसा होगा जब ये डबल बॉन्ड जो है वो O2 के साथ होगा, ठीक है? और एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जब ये डबल बॉन्ड किसके साथ होगा? O3। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब डबल बॉन्ड, इसका मतलब जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसका मतलब कि डबल बॉन्ड इन तीनों ऑक्सीजन के ऊपर हो रहा है, ठीक है? तीनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में वो डबल बॉन्ड मूव कर रहा है, ठीक है? तभी तो क्या नाम है, इसकी बॉन्ड लेंथ सबकी सेम है, तभी तो सबकी सेम है। क्यों? क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वो कह रहा है कि ना तो ये बॉन्ड लेंथ एग्जैक्टली डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है और ना ही एग्जैक्टली सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, वो कहीं इन दोनों के बीच में है। क्यों? क्योंकि कभी वो बॉन्ड डबल हो रहा है, कभी सिंगल हो रहा है, तो हमने एवरेज ले लिया, ठीक है? अच्छा, अब बॉन्ड ऑर्डर पे आ जाओ। देखो बॉन्ड ऑर्डर मैं कह रहा हूं कि डबल बॉन्ड है ही नहीं, अभी कंसीडर ही मत करो डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? 1। लेकिन अब डबल बॉन्ड है, कितना डबल बॉन्ड है? 1। और वो कितने ऑक्सीजन पे सर्कुलेट हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? 4/3 और सॉल्व करके 1.333। तो देखो ना तो ये एग्जैक्टली 1 है ना ही एग्जैक्टली 2 है, बीच में है। क्यों? क्योंकि वो बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल होता जा रहा है, ठीक है? तो देखो तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है कार्बोनेट में? किसका? CO का कितना है? 1.3। ना तो वो प्योरली 2 है कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, ना ही वो 1 है, वो इन दोनों के बीच में। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस, बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। जैसे कि एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, सिंपल नहीं है, अच्छा है, सल्फेट। अगर मैं, क्या आप बता सकते हो मुझे बॉन्ड ऑर्डर SO का कितना होगा? चल सल्फेट बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज बेसिकली द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द टू एटम्स। तो अगर 2 बॉन्ड है तो हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 2 है, 3 है तो हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर 3 है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा। Tell me what it is. Yes, tell me what it is. Sir, 2.5. 2.5. Sulfate. These होते हैं सल्फेट, Yes. ठीक है? चलो अब बता सकते हो बॉन्ड ऑर्डर। देखो अगर डबल बॉन्ड होते ही नहीं कितना होता? 1। कितने डबल बॉन्ड है? 2. और कितने ऑक्सीजन पे सर्कुलेट कर रहा है? 4. कितना हो गया बॉन्ड ऑर्डर? 1 + 1/2। आपने बोला 2.5, 2.5 तो हो ही नहीं सकता। कैसे हो जाएगा? 2.5 तो डबल और ट्रिपल के बीच का हो गया, होगा तो 1 और 2 के बीच में ना। अच्छा, now my question is how many resonating structures are possible for sulfate? How many resonating structures are possible for sulfate? Tell me. Tell me. How many structures? सब अपने इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स निकालें। 28 structures. नहीं 28 है।
हम कुछ और ओके सर कितना डिफिकल्ट क्यों कर रहे हो क्या इलेक्ट्रॉन्स काउंट की जरूरत पड़ती है हम तो वही नहीं हम जो स्ट्रक्चर मत बनाओ इसको इसलिए मैंने वहां नहीं बनवाया सर 4 या 8 होगा 4 या 8 ये क्या आंसर है 3 बोले 8 4 और इसी द डबल एक बार को 7 8 6 7 भी ठीक है इसका भी 1 या 2 नहीं बॉन्ड ऑर्डर नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया अच्छा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जैसे कार्बोनेट के लिए 3 थे ना यहाँ कितने होंगे सल्फेट के ओके आई एम गेटिंग द आंसर्स 4 8 भी था एक आंसर नहीं नहीं सर वो तो सबने ऐसे ही करा तो 8 ना लिखो हम यहाँ नहीं है तो हो सकता है लिखना है ठीक है चलो तो आपका आंसर है Tell me. Yes, Shireen, Gayatri, Bhavika, Anjana, tell me. सर 3 Will it be 4? Okay, I'm getting 4. 3. 28. बताओ. 4 ही होंगे So अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैक्सिमम बच्चे 4 करके आएंगे ना. एक और ऑप्शन दे तो फिर मैं ABCD कर दूं. 6 कर दो सर हां 6 कर लूं. ये 3. Yes. Yes. हेलो Yes. सर नोट्स कहाँ पे मिलेंगे इसके जो आप लिखवा रहे हैं अभी मेरी क्लास तो खत्म होने दो मैं बता दूंगा कहाँ पे मिलेंगे मैं बोल रहा हूँ ना क्लास के बाद में आपसे बात करूंगा डोंट वरी ओके सर दिस इज रोनित राइट यस सर ठीक है मैं बात करता हूँ आपसे क्लास के बाद हाँ सर 4 कंफर्म चलो देखो इधर आ हाँ कोई 8 चलो वो तो लिखा ही है ओके वैसे ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है स्ट्रक्चर में थोड़ी गड़बड़ होगी तो उस पर ध्यान मत हाँ ध्यान तो देना पड़ेगा सॉरी ध्यान देना पड़ेगा ठीक है नेमिंग कर लो 1 2 3 देखो एक बार डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में हो सकता है एक बार 1 3 के बीच में हो सकता है एक बार 1 4 के बीच में हो सकता है एक बार 2 3 के बीच में हो सकता है एक बार 2 4 के बीच में हो सकता है एक बार 3 4 के बीच में हो सकता है मेरे को अच्छा लग रहा है मेरा तुक्का सही गया नहीं हो सकता यही तो पॉसिबिलिटीज है हाँ एक बार डबल बॉन्ड से 1 और 2 के बीच में एक बार 1 और 3 के बीच में 1 और 4 के बीच में 2 और 3 के बीच में 3 और 4 के बीच में 2 और 4 के बीच में बस ये पॉसिबिलिटी the 1 2 3 4 5 6 structures 6 resonating structures अब अगर ये क्वेश्चन सपोज आ गया तो आप क्या करोगे आउट ऑफ सिलेबस नो इट इज नॉट और ये भी नहीं कह सकते कि अरे पैटर्न चेंज हो गया है ना ऐसा नहीं आउट ऑफ ब्लू पूछ लिया रेजोनेंस हमारे सिलेबस में है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमारे सिलेबस में है तो क्यों नहीं पूछ सकता चलो ठीक है ओके ClO4 माइनस देखो Cl है O4 1 2 3 ये स्ट्रक्चर ठीक है इसके तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप आराम से बता सकते हो इसमें कितने हो गए इसमें तो 4 हो गए एक बार डबल बॉन्ड यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ एक बार यहाँ सॉरी सिंगल बॉन्ड तो ये तो सिंगल बॉन्ड से भी कर सकते हो आप जब एक कोई चीज एक ही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ओके एंड बॉन्ड ऑर्डर देख लो 1 होता अगर कोई भी डबल बॉन्ड ना होता कितने डबल बॉन्ड है और कितने के बीच में सर्कुलेट हो रहा है 4 तो कितना हो गया 7 बाय 4 इसमें फ्लोरीन का वो बैलेंस से सेटिस्फाई हो रही है 8 वाली हाँ क्योंकि ये हाइपर वैलेंट है दैट इज अ लिमिटेशन अभी मैं करा रहा हूँ यही तो लिमिटेशन है लुईस डॉट स्ट्रक्चर की कि सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो गए या कभी कम या फिर हाइपोवैलेंट हो सकते हैं
ठीक है, चलो अब क्योंकि हमने ये कर लिया, अब हम लिमिटेशंस कर रहे हैं। हमारे पास टाइम है, हाँ हो जाएगी लिमिटेशंस। चलिए अब मैं लिमिटेशंस करा रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ लुईस कॉन्सेप्ट, लुईस देखो, नंबर 1, existence of hypovalent species. Hypovalent species. Hypovalent species मतलब वो वाली species जिसमें central atom के पास less than 8 electrons. इसका मतलब है central atom having और वो एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जिस्टेंस इसलिए मैंने यूज किया, अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, बट वो एग्जिस्ट करते हैं मॉलिक्यूल हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि BF3, BCO3, BEF2 एक्सेट्रा। देख लो BF3 मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 8 भी नहीं, ठीक है। अच्छा, सेकंड हाइपरवैलेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ hypervalent species more than 8, central atom के पास, central atom having more than 8 electrons। देखो जैसे कि PCl5, SF6, IF7 सब, हाँ वो सब, ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, सब क्लोरेट पर क्लोरेट सब। चलो इसको ले लो, इसको ऑड इलेक्ट्रॉन में लिख देंगे, ये ठीक है। ठीक है, थर्ड existence of odd electron species, odd electron species जैसे कि NO, NO देखो NO कैसे होता है, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। तो देखो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, यस। तो ये क्या किसका एग्जांपल हो गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऐसे NO2 माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, सारे ही एग्जांपल्स ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के, ठीक है। फोर्थ existence of transition metal ions, transition metal ions। देखो हमें पता है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है टू कन्वर्ट इनटू Na+, और Na+ में I am saying that it is having the configuration 2 and 8, that means the valence shell of this ion is having the 8 electrons. But this is not true for transition metal ions. We know that if you have copper plus, we have iron 2 plus, etc., Ag plus, सब में कहाँ है 8 electrons valence shell? तो है नहीं है, तो ये लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, तो यहाँ भी लूज कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है। चलिए अगर लूज कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं है तो हमें तो दूसरी थ्योरी पे जाना ही पड़ेगा, और वो दूसरी थ्योरी कौन सी है, VSEPR थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है VSEPR थ्योरी, जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। देखो पोस्टुलेट्स के लिए refer NCERT, obviously why would I write the postulates here, ठीक है, refer NCERT, but वो आपको सारा में नहीं समझा दूंगा। वो मैंने क्यों लिखा है कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में ना आ जाए, वैसे आपको वो अगर थ्योरी समझ आ रही है तो सारे पोस्टुलेट्स खुद ही समझ आ जाएंगे। देखो ओके, कुछ मतलब रिपल्शन से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। चलते सबसे पहले स्टेप नंबर 1 पोस्टुलेट्स को लिए, स्टेप नंबर 1 फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। सबसे पहला काम क्या है,
Valence electron. Step number 2. Valence electron count if less than or equal to 8. Then you will divide it by. If valence electron count is greater than 8, आपके सिलेबस में यही कवर हो जाएगा, less than 56 पर उसकी divided by 8. Example PCl5. जल्दी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट बताओ. फॉस्फोरस नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, 5. क्लोरीन 7 क्लोरीन फैमिली से बिलोंग, हेलोजन है. 7 into 5 is which is 40. greater than 8, divide by 2. 8. तो 5. 5. आपको तब तक डिवाइड करना जब तक 0 ना आ जाए. 0 आई है. ओके, ये 5 क्या है? ये 5 है मेरा स्टेरिक नंबर. ये क्या है? स्टेरिक. अब देखो, यहां मैं लिख रहा हूं स्टेरिक नंबर, यहां मैं लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन किसकी? ऑफ सेंट्रल एटम. देखो, स्टेरिक नंबर 2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 4 sp3 5 sp3d 6 sp3 and 7 ठीक है. So can you please tell me what is the hybridization of phosphorus in PCl5? SP3D. sp3d. sp3. So since steric number 5 is 5, which corresponds to sp3d hybridization. I'm not telling you what is the geometry, what is the shape as of now, but the hybridization is sp3. Hybridization is mixing of sp3d. वो अब आगे जो भी कराना तब आएगा. ठीक है, समझ आ गया? Alright. और अच्छा, एक चीज और, अगर मुझे निकालना लोन पेयर कितने हैं फॉस्फोरस पर, सेंट्रल एटम पर, लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम, वो कैसे निकालते हो? स्टेरिक नंबर में से आप माइनस करते हो सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स. जैसे कि स्टेरिक नंबर कितना आया, अगर मुझे लोन पेयर ऑन फॉस्फोरस निकालने तो 5, और सराउंडिंग एटम्स कितने हैं? 5. 0. फॉस्फोरस के पास की वैल्यू SO2. जल्दी से बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट. सल्फर ऑक्सीजन फैमिली 6, तो 6 into 3 हो गया ये तो. 6 plus 6 into 2, तीनों एक ही फैमिली के तो है. 4 क्वेश्चंस, 8 हैलोजेंस, 4 क्वेश्चंस पता होना चाहिए. 3 ब्लॉक्स पहले पता कर लेंगे. ठीक है, तो ये हो गया 18. ग्रेटर देन 8. तो किससे डिवाइड करना है? 8. कितना हो गया? 1.5. अरे पॉइंट्स पे नहीं लाना. 2, अब 2 आ गया. 2 लेस देन 8 है, किससे डिवाइड करोगे? 2. स्टेरिक नंबर क्या है? 3. And 3 corresponds to sp2 hybridization. That means the hybridization of sulfur in SO2 is sp. Don't fear. Steric number is 3. surrounding atoms is 2. 1. 8. What is the hybridization of oxygen in water? sp, sp2. Valence electron count is 8. 8 को डिवाइड करोगे 2 से. 4 corresponds to sp2, right? sp2. So sp2 बोला आपने. तो ऑक्सीजन is sp3 hybridized in water. हाँ वो तो नहीं कुछ है, तो hybridization. और लोन पेयर और ऑक्सीजन is
4 माइनस, अरे 2 तो है, चलो तू वहाँ सीख लिया। Valence electrons and नहीं मैं दूसरा मैथमेटिकल देखो, अब हमें डिफरेंस समझना है ज्योमेट्री और शेप में। ज्योमेट्री एंड देखो, कोई एक मॉलिक्यूल है, सपोज AB2 टाइप, और A के पास एक लोन पेयर है, A के पास, ठीक है। तो देखो ज्योमेट्री क्या होगी, A, अभी क्योंकि मुझे पता है ये ट्राइगोनल प्लेनर होएगा तो मैं अभी बना रहा हूँ, तो समझ आ जाएगा, और ये इसके पास एक लोन है। ज्योमेट्री निकालते वक्त मैंने लोन पेयर को भी एज अ पार्ट ऑफ एक एटम की तरह कंसीडर कर लिया, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया कि ज्योमेट्री हो गई इस मॉलिक्यूल की ट्राइगोनल। लेकिन जब मैंने शेप को फाइंड आउट किया तो मैंने बोला, तो मैंने लोन पेयर को एज एन एटम नहीं माना, ठीक है। ये इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और शेप सिर्फ ये है। ये कौन सी शेप है? बेंच शेप, या फिर आप इसको वी शेप भी बोल सकते हो, या फिर एंगुलर शेप, कुछ भी बोलो, ठीक है। इसका मतलब शेप निकालते वक्त मैंने लोन पेयर को एज अ पार्ट ऑफ या मतलब एज एन एटम ट्रीट नहीं किया। तो मैंने क्या ट्रीट किया? मैंने ट्रीट करे रिपल्शंस। किस के बीच में? मैंने ट्रीट करे रिपल्शंस, और मैंने बोला कि लोन पेयर रिपल्शंस ज्यादा होते हैं देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं 3 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं, मीथेन, NH3 एंड वाटर। अभी क्योंकि जब हम सीख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये है टेट्राहेड्रल, यहाँ पे 4H आर एट द कॉर्नर ऑफ द टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं ज्योमेट्री क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ज्योमेट्री क्या हो? sp3 आते ही ज्योमेट्री क्या आएगी वो मैं अभी बता भी दूंगा, टेट्राहेड्रल। शेप क्या होगी? जब कभी लोन पेयर है नहीं तो जो ज्योमेट्री वही शेप, जब लोन पेयर ही नहीं है तो जो ज्योमेट्री वही शेप। तो शेप क्या है इसकी? NH3 ना। ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है N की? sp3 ही है अभी। sp3 आते ही ज्योमेट्री क्या हो गई और शेप क्या हो गई, क्योंकि लोन पेयर आ गया। तो देखो, हाँ लोन पेयर आ गया तो क्या शेप हो गई? पिरामिडल। यहाँ जो ये बनी के ईयर्स नहीं है, नहीं एक बच्चे ने बोल दिया है, क्लास बोर होती तो बच्चे थोड़ा एंटरटेन करते हैं ना, तो बोर तो नहीं है। ओके, तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑक्सीजन की? ज्योमेट्री, शेप, वी शेप। हाँ ठीक है, वी शेप। चलो ये देख लो जरा। अच्छा मैंने ऐसे लिखवाया क्यों? इससे फर्क क्या पड़ा इन रिपल्शन से? यस, इन रिपल्शन से फर्क क्या पड़ा? जब वो रिपल्शन होते तो एंगल में। हाँ तो देखो, जो यूजुअल टेट्राहेड्रल एंगल है वो कितना है? 109.5 डिग्री। अब टेट्राहेड्रल तो यहाँ भी है तो एंगल कितना होना चाहिए था? 109.5 डिग्री, बट है कितना? और यहाँ क्यों? Because of repulsion.
रिपल्शन एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में। जब रिपल्शन होगा तो ये इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा तो एंगल स्ट्रेट करेगा। अब यहाँ देखो, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा लोन पेयर के बीच में, तो ये तो पास आएगा ना, जब वो ऊपर ऐसे रिपल करेगा तो ये दोनों तो पास आएंगे ना, तो फर्दर डिक्रीज हो गया इन दी बॉन्ड, इन दी बॉन्ड आएगा। तो अब मैं बोल सकता हूँ लोन पेयर रिपल्शंस आर higher than lone pair and minimum least. Clear? Next class is going to be very important. जब हम सारे hybridization. Yes. Now we can say that the shape is concerned with this lone pair and geometry is independent of lone pair. Yes, geometry is independent of lone pair because it has considered the lone pair to be as an atom. Okay, sir. Yes. Yes, just a second. Tell me if this is clear. Yes, sir. All right. Yes, tell me if this is clear. Yes. 2.0. So next class, I'll start with 5 questions from basic concepts, 5 questions from structure of an atom, and then we'll continue with. Well, take questions mainly from voluminous contraction. It's confusing. Which one? Voluminous contraction. In the basic concepts? Yeah, sir. Okay, ठीक है. That is the part of idiometry. Okay, I'll take care of it. Okay. Okay, sir. We'll do the questions based. That's an idiometric topic. Okay, we'll do the questions based on that. Okay, thank you so very much. Happy Dashera to everyone. Thank you so much, and same to you. Thanks, sir.